listeners. Hopefully, all are having an amazing time and excited for today's session. Myself, Rita Survey, and I'm working as a public secretary of the Burak Association. Welcome all of you for today's session. Today we have with us Ms. Warda Iftikhar. She has done MS in Gender and Women Studies. She is currently leading a project she leads, supporting her empowerment, leading engagement, and digital safety to stop TFGBV Trans South Asia with a search of common ground that aims to advance women led and multi sectoral prevention, protection, and response to it to foster safe, meaningful online engagement and participation of diverse women and girls in South and Central Asia. So she has also worked for Shahur Foundation for Education and Awareness. And she has achieved a lot, mashallah, mashallah. So it will take a lot of time if I will mention everything. So it's up to you, ma'am. Ma'am, you can start now. Thank you so much, Rushta, and good morning, everyone. I hope you're all joining from Pakistan. Um, I'm very honored to be here, and I've been part of such initiatives since a long time. I think this is one connection that has rebuilt and come back to me, and it's very encouraging to be amongst the young lot to see what they're doing. I'll try to touch upon a few things regarding digital safety and security in journal and in the startup context. Brushta, I've shared a Google link with you. If you could float it amongst the participants, that would help me know them better in terms of the content they'd be more interested in knowing about. A little bit about me. I happen to be an engineer. I was amongst four students in my class, four female students in my class out of 60 male students. Long story short, I did engineering with excellence. I ended up working in one of the biggest telcos in Pakistan, but I felt out of place because I did not feel lots of female role models to look up to, even in challenging times. And then it was hard for me, I think, in that moment to keep that work life balance because I wanted to climb up the ladder, but the gender norms or the patriarchy did not let me do so. So I merged into the development sector. I did my master's in women and gender studies, and I've been working on women empowerment and gender equality since then. So engineering does give me that head start of thinking about things critically. I do enjoy coding, and AI is of special interest to me. Hence, the current project that I'm doing, which is technology facilitated gender based violence. I'm not sure if you have heard the term, but we'll talk about it as well, as in to see how different things come together and what interdisciplinary things come out of it to make it a blessing or a disguise. Moving forward, I'd appreciate if a few of you could probably tell me if you are in what phase of startups are you? Are, are you in the ideation phase? Are you just even before that, or maybe you've built your team looking for funding, working on your ideas so that we built a context accordingly? You can chat through the type in the chat, or if someone wants to say something, they can use the hands up sign and I will pass the mic over to you. Isa, I think you want to share what you do. Please go ahead.
Okay, I'd like to think that was a Um, mistake. many students here are aiming to start their startups. For now, they haven't studied any project, but they're just planning to do that. Okay, perfect. Uh, Thank you. So, we will be talking about digital space. For startups, back in time, I'd say, let's say, maybe 15 years ago, it was not easy to come up with the idea and start something around it. With the social media and the digital media, things have become easier. हम इसको बाद में dissect करेंगे कि easier है या नहीं है. However, uh, it's easier for people to access the market now. It's easier for people to do the research now. It's easier to market your product. It's easier to see what other people are doing. इसमें हो ये रहा है अब सब, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि डिजिटल मीडिया उन्हें यूज करना है और उसकी बेसिस पे अपनी कस्टमर ओपिनियन बिल्ड करनी है, जो कि बहुत केसेस में ट्रू भी है. एआई सीम्स लाइक अ बिग थ्रेट बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होती नजर आ रही हैं. तो कुछ बिजनेसेस जो पहले इस चीज के ऊपर अपने आप को बिल्ड कर रहे थे वो शायद नहीं कर सकेंगे. इट इज अ मेजर डिस्कशन इन द इंटरनेशनल एंड द लोकल मार्केट्स, बिकॉज जो पहले चीजें डेटा एंट्री की जॉब्स थी दैट नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. इवन आइडिया थॉट थिंकिंग की थॉट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, बिकॉज बहुत ज्यादा स्मार्ट एआई आ रहे हैं. और वो बिकॉज अगर आप में से किसी का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, वो फीडबैक लूप पे चलते हैं. दे आर ट्रेनिंग देमसेल्व्स टू गेट बेटर. ऑब्वियसली मैं चैट जीपीटी यूज कर रही हूँ, आप कर रहे हो, या कोई रैंडम बंदा कर रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस वुड बी डिफरेंट, उसके रिस्पॉन्सेज वुड बी डिफरेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू रिसर्च. आपकी इनपुट कितनी अच्छी है ये डिटरमिन करेगा आपकी आउटपुट कितनी अच्छी है. अगेन उसमें ये बात भी जरूर है कि हम उसके रिस्पॉन्सेज पे 100% सर्टन नहीं हो सकते, बिकॉज अगेन इट्स ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्स और उसकी बायसेस भी हैं, क्योंकि वो बायसेस मैं और आप उसको फीड कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं नर्स का नाम लूं, आप में से कितने लोगों के लिए ये सोच फर्स्ट थॉट है कि नर्स है तो फीमेल होगी. सिमिलरली टीचर हैं, जब तक हम स्कूल और कॉलेजेस में थे तो वो फीमेल होंगी. हालांकि टीचर कहने या नर्स कहने से कहीं ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि उसका फीमेल होना जरूरी है. सिमिलरली मैं कहूँ कि आई हैव अ बैड बॉस, इसमें भी बहुत अक्सर ख्याल ये होगा कि बॉस है तो मेल होगा. और अगर मैं और मेरा कोई कोलीग एक ऑफिस में वॉक इन करके जाएं और हम एज से लेस मोर और लेस एक जैसे लग रहे हो, तो इट वुड बी assumed given in our context कि वो मेरा बॉस है और मैं उसकी सबऑर्डिनेट हूं. दो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं उसकी बॉस हूँ. किसी की एज, फीचर्स, जेंडर, उसकी एथनिसिटी, उसकी रिलीजियस बैकग्राउंड इस बात का डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि वो किन चीजों में आगे जाएगा और किन में नहीं जाएगा. और ये चीज हमें एआई की दुनिया में भी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि एआई हमारी ही इनपुट्स के ऊपर बेस्ड है, हमारी ही इनपुट्स के ऊपर डिवाइस कर रहा है अपने आप को. सो that being said about social media and digital media, as much as this provides the startups an opportunity to take the head start, to lead ahead, maybe आप अपने चकवाल में बैठ के आप लाहौर के लोगों को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज आप अपनी आउटरीच इस किस्म की बना सकते हो थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स लाइक दराज, लाइक लॉट्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स. अब आप कहीं से कहीं चीज भेज दो, इट्स सो इजी, ओवरनाइट डिलीवरी पे जर्नली पहुंच जाती है. तो पहले जो लोगों के पास ये बैरियर्स थे कि नहीं जी मैं तो छोटे शहर से हूँ, मेरे पास आइडिया तो बहुत बड़ा है पर मैं नहीं कर सकता, वो काइंड ऑफ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने कम कर दिए. अब पर इसमें हम एक चैलेंज की बात भी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबके लिए अवेलेबल है, तो ये आपके लिए एक थ्रेट भी बन जाता है. थ्रेट इस तरह भी बन जाता है, वन जो पहले बात हुई कि आप रिलाय बहुत कर रहे होते हो उसके ऊपर, आप अपना बायसेस या अपने प्रॉब्लम्स को सोच नहीं रहे होते. आपको लगता है, और स्पेशली आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों के लिए ट्रू होगा, but we've seen education standard has degraded over the COVID years, and post that
बिकॉज एआई आ गया है, वो आप चीजें स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स बनाना बहुत इजी हो गया। टीचर्स के लिए मॉनिटर करना मुश्किल है कि किसने असाइनमेंट खुद बनाई और किसने नहीं बनाई। इस पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या ये लीगलाइज हो जाना चाहिए, क्या फिर टीचर को कोई और तरीके अपनाने चाहिए आपका प्रॉम्प्ट चेक करने के लिए कि आपको समझ कितनी आई है। और ये ऑनगोइंग डिबेट रहेगी, और मेरा ख्याल है इस हमारी जनरेशन की ये स्ट्रगल्स हैं तो हमसे पिछलों की कुछ और थी। एक मैं आपको स्टार्टअप्स के लिए बात बताऊं, और सिंस मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग किस किस्म के स्टार्टअप्स पे सोच रहे हो, आई हैव हैड द चांस टू मॉनिटर हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स। जब, और ये बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर पीपल टू हैव आइडियाज एंड बी पैशनेट अबाउट देम। थोड़ा सा हम इसमें ये कर देते हैं, अपने साथ जाते और दूसरों के साथ भी। हमें लगता है जो मेरे पास आइडिया है ना, वो किसी के पास नहीं है। अब गेम ना आइडिया से बहुत आगे जा चुकी है। मतलब अब कोई बंदा नहीं आएगा जो व्हील को रीइन्वेंट करेगा, पर व्हील की यूज क्या है इसके बारे में रीइन्वेंशन की बात हो सकती है। ठीक है, सो आप लोगों ने जब भी किसी आइडिया पे काम करना है, रिसर्च करें, देखें आपके साथ का कोई है काम कर रहा, आपके शहर में, आपके मुल्क में, दुनिया में। क्योंकि जब हम स्टार्टअप से पूछते हैं ना आपके कंपेटिटर्स कौन है, ये मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है जी, मेरा तो आइडिया इतना अच्छा है, ऐसे नहीं होता। अगर आपका इतना आइडिया अच्छा है, वो आज से 50 साल पहले हो चुका होगा। और अगर किसी ने नहीं उसको किया ना, तो कोई उस पर काम कर रहा होगा किसी साइलो में, और उसके अपने चैलेंजेस होंगे। और आपके लिए ये फायदेमंद है कि आप उसके बारे में जान लें, उसके एक्सपीरियंसेस की बेस पे, और अपनी टाइम एनर्जी उसमें ना लगाएं। एंड इट्स ऑल्सो ओके कि आपका फर्स्ट स्टार्टअप, आपका फर्स्ट आइडिया डजंट वर्क। हम एक हार्वर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट ये होता है कि आपको हम $5 दे रहे हैं हर एक को। यहाँ पे लेट्स से अगर 13 लोग हैं मेरे समेत, सो 12 लोगों को $5 मिल रहे हैं, और आपने एंड ऑफ द डे को मुझे रिपोर्ट करना है उन $5 को कितना बढ़ा सकते हो उसके साथ। अच्छा, अब इसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग होंगे ऐसे, एंड वी कैन इवन डू दैट। अगर आप, इफ समवन इज विलिंग, आई कैन डू दैट फॉर यू, आई कैन सेंड दैट अमाउंट टू यू, एंड आई वांट टू सी कि आप उससे क्या करते हो। पर इस एक्सपेरिमेंट में होता जनरली ये है कि कुछ लोग होंगे जो उस ₹500 या $5 पे लिमिटेड रहेंगे। वो कहेंगे ये हमारे पास इनपुट है, इसी को मैंने ₹200 इसको देने, ₹300 इसको देने, इससे मैंने एक बाहर डोनट्स का स्टॉल लगा लेना है, वेक सेल कर लेनी है, 500 की चीजें लूंगा, 700 की बिक जाएंगी, 200 में मेरा प्रॉफिट है। कुछ होंगे वो कहेंगे अच्छा 500 तो ये है, मे बी मैं अपनी मेहनत से इसमें 300 और डाल सकता हूँ जो मैंने सेव किए हुए थे स्कूल कैफे पे कुछ लेने के लिए, पर लेट्स स्किप दैट फॉर टुडे। आज मैं सिर्फ बिरयानी ले लेता हूँ, और आज मैं कोक नहीं लेता या ले लेती हूँ, और वो जो पैसे बच गए हैं वो मैं इसमें डालती हूँ, और इससे मेरे पास ज्यादा चीजें आ जाएंगी, प्राइस एक ज्यादा अच्छी निगोसिएशन हो जाएगी, मैं इससे एक्सपेरिमेंट कर लूँ। कुछ होंगे जो वो ₹500 लेके दूर निकल जाएंगे कि हम कहीं से सस्ती चीजें लेके आते हैं, मे बी वहीं पे बेच देंगे। और कुछ होंगे जो 400 उसमें से अपने किसी दोस्त को दे देंगे, 100 अपनी जेब में डाल लेंगे, और उसे कहेंगे तुम 400 से मुझे बढ़ा के कितने दे सकते हो। वो दिन के एंड पे 600 बढ़ाए, तो उस बंदे का जो फर्स्ट पर्सन है उसका नेट प्रॉफिट एनीवे एक रेगुलर पर्सन से ज्यादा होगा, बिकॉज उसने मेहनत नहीं की है, उसने सिर्फ डेलीगेट कर लिया। तो स्टार्टअप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। यू लुक एट योर रिसोर्सेज दैट यू हैव, थिंक ऑफ द इनपुट्स दैट यू हैव। वो जो ₹500 थे या $5 थे वो आपकी इनपुट थी, आपके रिसोर्सेज थे, आपने दिमाग कैसे इस्तेमाल किया, आपने कोई सेविंग की, आपने कोई साइड से पैसे वापस लेके आया, अब्बू से कहीं उधार मांग लिया, अम्मी से कहा जो मैं सब्जी लेके आई हूँ या आया हूँ उसमें से जो पैसे बचे हैं वो मैं रख लूंगा क्योंकि मैंने इसको बिजनेस में डालना है। और कुछ ने उसको आगे डेलीगेट करके मिडिल मैन या मिडिल पर्सन का किरदार अदा करके पैसे ज्यादा बनाए। ये सब स्टार्टअप्स में चलता है, ये सब स्टार्टअप्स की लैंग्वेज है, और ये सब ओके है। इसमें से कोई भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। और इस एडवांटेज की जब हम बात करते हैं ना कि किसी के, अभी तो यहाँ पे इनपुट मैं आपको दे रही, पर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे जेंडर लेंस से। सबके पास वो ₹500 नहीं है, पर सब वो काम स्टार्ट कर सकते हैं।
कोई वो काम 500 इकट्ठे करने के लिए मे बी हर दिन 50 रुपए एक बॉक्स में डाल रहा है और वीकेंड पे उसके पास 500 हो जाएंगे। कोई हो सकता है 500 किसी से उधार ले रहा हो और महीना महीना करके रिटर्न कर रहा हो, और जो प्रॉफिट्स के एंड पे या उसमें से उसके साथ मार्जिन शेयर कर रहा हो कि ठीक है तो मुझे 500 दो, मैं तुम्हें जब मेरे पास 700 होंगे तो मैं तुम्हें 500 के 600 वापस करूंगा, 100 मेरे 100 तुम्हारे। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ क्योंकि अगेन मुझे आइडिया नहीं है, पर ये बेसिक मैथ हम सब समझते हैं और ये हमें सब आता है। आप अगर किसी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप क्लास में होंगे तो उसके लिए आपको फैंसी जार्गन्स बताएंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि जी मुझे तुम 100 रुपए जो वापस करोगे मेरे 500 पर, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। ये इन्वेस्टर के लिए बड़ी चीज है। किसी से आप लेवरेज लेके लोन लेते हैं तो वो भी एक टर्म है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि हम इसको कैसे प्लेस करते हैं। आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा है कैसा है ये आप डिटरमिन कर रहे हैं आपकी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। इसमें कुछ लोगों के पास प्रिविलेज होगी, कोई होगी अमीर माँ बाप की बेटी और अमीर माँ बाप का बेटा जो घर में बैठे बुटीक स्टार्ट कर लेंगे और हम 5 साल बाद कहेंगे कि ओ माय गॉड तुमने इसलिए कर लिया क्योंकि तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट की। ये ऐसी बात है जैसे हम कहते हैं कि शायरों और अदीबों को कि इनके बच्चों ने तो होना ही स्मार्ट है, इनको तो 10 लैंग्वेजेस आनी होनी है क्योंकि इनके तो घर में बोली जाती है। जरूर एक हेड स्टार्ट का एडेड एडवांटेज होता है जब आप स्टार्ट की फेज पे होते हैं। मैं और आप यहाँ हैं, मुझे मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, आपने नहीं की। अगर मैं इंजीनियरिंग का कोई काम करती हूँ तो मुझे समझ आती है, पर मैं उस इंजीनियरिंग की डिग्री के ऊपर कुछ करती नहीं हूँ आगे। और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, पढ़ती रहती हैं। तो मे बी मैंने हो सकता है 4 साल में जो किया आप 6 महीने में कर लेती हैं, और 6 महीने 1 साल बाद जब हम देखते हैं तो आप यहाँ पे होती है अपने नॉलेज लेवल में, मैं वहीं होती हूँ। इसी तरह है स्पीचेस करने के बारे में, इसी तरह है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, इसी तरह है पिच देने के बारे में। हो सकता है मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जो मुझे, या आपके पास वो इन्वेस्टमेंट हो जो आपको यहाँ पे ला के रख दे, और मैं मुसलसल मेहनत कर करके एक दिन आपका लेवल मीट करूंगी। हो सकता है मुझे इस टाइम में ज्यादा टाइम लगे, पर इसके बाद जब क्योंकि अब मैंने मेहनत की आदत डाल दी है तो मैं तो मीर माँ बाप की बेटी वही पैसा लेके आई हूँ, पर आपने यहाँ चले जाना। ठीक है, सो ये चीजें पाकिस्तान में क्योंकि हमें बहुत सुनने को मिलता है कि जी यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर इसलिए ग्रो नहीं कर रहा कि हमें सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं करते, और नहीं करते पेरेंट्स। पेरेंट्स को जाके बताया मैंने बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो जाके नौकरी ले आओ, महीने के आखिर पे पैसे आएंगे। क्योंकि स्टार्टअप है भी नहीं हर एक के लिए, हर एक के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है भी नहीं। वो कहते हैं ना कि आई डोंट डू 9 to 5 बिकॉज आई लाइक टू बी माई ओन बॉस। You don't do that 9 to 5 anymore when you start that startup, but you do 24/7 because now you know you are in it, you have people involved who are looking up to you। और इस सब में आपका बर्नआउट भी होता है। ऐसे नहीं है कि बहुत हंसी खुशी की स्टोरीज आती हैं, मार्क जुकरबर्ग यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था फिर उसने फेसबुक बना ली। हमें वो तब पता चला जब उसने फेसबुक बना ली वो मल्टी मिलियनर हो गया। उससे बीच में क्या था ना वो बताएगा ना हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे लगता है कि प्लेट में रख के सक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं है। सो bringing all this back to where we started, use the digital media to your advantage, see how it helps you। और जब हम इसमें हेल्प की बात करेंगे आप ये भी जरूर देखें कि जब बिजनेस स्टार्टिंग हो रही है ना, इसको किस इंडिकेटर्स पे हम मेजर कर सकते हैं। हम इसको इस बात पे जरूर देखते हैं कि एक्सेस और पार्टिसिपेशन कैसी है। आपको आपके और आपके कंपेटिटर के एक्सेस के चैलेंजेस एक से हैं। इसमें ये आ जाएगी फॉर इंस्टेंस अगर एक लड़का और लड़की एक जैसी कॉम्पिटेंस के एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की बात करें, क्या उस गर्ल को भी एक्सेस उतनी है हमारे सिस्टम्स की बेसिस पे, हमारे कल्चरल सोशल नॉर्म्स की बेसिस पे? क्या वो भी लेट्स से अगर कोई ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल दैट इज रेलेवेंट, लेट्स से उसे कोई अंदरून की मार्केट से कोई हार्ड रॉ मटेरियल लेके आना होता है, लेदर फैक्ट्री जाना होता है। इज अ गर्ल in our society equipped enough, feels safe enough to do it?
या अभी हम फिजिकल स्पेस की बात करें, ऑनलाइन स्पेस पे भी आते हैं, क्या वो रात के 6 बजे जा सकती है उस मार्केट अगर कोई इमरजेंसी का ऑर्डर आया और अब डिलीवरी करना है? सिमिलरली इसमें हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, एक बच्ची को पाकिस्तान में शायद उसके पेरेंट्स 10 लाख का जहेज तो ले देंगे, पर उससे कहें कि 10 लाख रुपए आप उसको दे दें कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगी, आसपास के 10 लोगों को एम्प्लॉय करेगी, तो वही बाप उतने ही पैसों पे शायद कहेंगे कि नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं कर सकती। ये एक इनग्रेन्ड हमारे अंदर सोसाइटल कंडीशनिंग है। इसी तरह हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं हम। आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ऐसे घरों में होंगे जहाँ पे आपने बोथ मेंबर्स ऑफ द फैमिली देखे, फादर्स भी देखे, मदर्स भी देखे। अम्मी बीमार हो ना, पता इससे चलता है कि अम्मी बीमार है, आज खाना भी नहीं पक रहा तो अम्मी बहुत बीमार है। अब्बू को फ्लू हो तो वो मैन फ्लू हो जाता है, मतलब उसमें सारे घर का सिलसिला दरम भरम, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ये सारी वो बातें जो हम देखते हैं। खवातीन, रिसर्च ये कहती है कि जब खवातीन एक लेके जाती है ना मेडिकल कंसर्न के लिए हॉस्पिटल, तो बहुत देर हो चुकी होती है। उनके शोल्डर में जो पहले दर्द था ना, जो पहले निब्रॉल खाने से सही हो जाना था, अब उसके लिए थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इसको इतना टाइम इग्नोर किया होता है, उन्हें लग रहा होता है इट्स ओके, उन्होंने इंटरनलाइज किया होता है कि ये पेन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हाउएवर, बंदों को सुबह छींका है, शाम को वो स्पेशलिस्ट के पास खड़े होते हैं, फिजिशियन के पास भी नहीं जाते। और ये भी हम अपने आसपास देखते हैं। सो ये हम हेल्थ एंड वेलबींग के चैलेंजेस की भी बात करें कि क्या ये हमारे लिए पैरामीटर्स एक से हैं, और ये स्टार्टअप्स में भी आते हैं। स्टार्टअप्स में जब हम खवातीन को एम्प्लॉय करते हैं, आप में से मुझे नहीं मालूम कितनों को पता है कि अगर एक कंपनी 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा एम्प्लॉयज को होस्ट करती हो एट वन place, it's compulsory for that organization to have a child care service at that organization premises. अब क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लॉज तो बन जाते हैं और बहुत अच्छे लॉज बने हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो होता क्या है, कंपनी 49 से एम्प्लॉय जब ऊपर होता है ना, नया आउटलेट खोल लेती है, क्योंकि ना हम 50 पे जाएंगे ना हमारी कंप्लायंस होगी। तो इसमें अब बात आएगी कि अगर आपने एक मेल एम्प्लॉय को रखा है और एक फीमेल एम्प्लॉय को रखा है, आप दोनों से एक जैसा काम एक्सपेक्ट करें, बिकॉज काम तो बहुत है। हाउएवर, वो फीमेल एम्प्लॉय नहीं रुक सकती शामों को देर तक, क्योंकि सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करती, बाहर निकलना सेफ नहीं है। बंदा रुक जाएगा, काम कर रहा हो ना कर रहा हो इसकी हम बहस नहीं कर रहे अभी, हम एज्यूम करते हैं चले काम भी कर रहा हो, पर आप आहिस्ता आहिस्ता फीमेल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आपको होगा कि यार ये मेरी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये घर जाती है तो उसका फोन साइलेंट पे होता है, ये देखती नहीं है। क्योंकि हम उस अनपेड लेबर की बात ही नहीं कर रहे जो वो खातून यू करती है। आपके अब्बू और अम्मी या जिसको भी आपने देखा हो, अगर दोनों लोग काम करते हैं तो बंदा आता है घर पे, आके सोफे पे बैठ जाता है, मैं तो सारे दिन से आया हूँ, माँ भी उसके लाड उठा रही, मेरा बेटा पूरे दिन से काम करके आए। वो खातून घर आती है, एंटर होती है, साथ ही बच्चा रो रहा है, खाना पका रही है, सासू ससुर की बातें सुन रही है कि तुम तो ऑफिस में बैठी हुई थी। बैठा तो वो भी हुआ था, मतलब हम कौन सा, या नहीं बैठा हुआ था चले, बट वी हैव टू सी कि ये जो हमारी प्रिविलेज जिसकी हम बात करें ना, ये एक जेंडर को शायद थोड़ी ज्यादा मिली हुई है। अभी हम ट्रांसजेंडर्स या उनकी बात ही नहीं करें, बिकॉज उनके इतने कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं कि आई डोंट थिंक कि इसमें जस्टिस होगा कि हम उन पर टच अपॉन भी करें। पर उनके साथ, मतलब आप सबको पता है कि हम उनसे कैसे बात करते हैं, हम उनको सोसाइटी में क्या मकाम देते हैं, हमने उनको एजुकेशन के किस लेवल पे रखा हुआ है, हेल्थ के किस लेवल पे रखा हुआ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के किस लेवल पे रखा हुआ है, वी ऑल नो दैट। इसके बाद हम एक्सेस टू सर्विसेज की बात करेंगे। आप सब ने देखी होगी शायद, आजकल एक कैंपेन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तो चल रही है कि बच्ची को उसके विरासत में हिस्सा दो। ये भी एक हमारी सर्विस है जो हम उनको रोक रहे हैं इससे, और ये उनको बिजनेस करने से भी रोक रही हैं, ये उनको आगे बढ़ने से भी रोक रही हैं।
आप जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है पाकिस्तान का, हम सेकंड टू लास्ट हैं। दैट इज बिकॉज और अभी ये सेकंड टू लास्ट वो कंट्री जिसमें एक्टिव वॉर नहीं हो रही, क्योंकि वॉर के टाइम पे होता है कि आपके हालात खराब होते हैं, लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता। हम एक अपेरेंटली सब सही है हमारे मुल्क में, फिर भी कुछ सही नहीं है। और ये बात मैं अपने बचपन से, आप अपने बचपन से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और गुजरता रहेगा। ये आप सब में वो पावर वेस्टेड है कि आप इसको बेहतर बना सकते हो, क्योंकि आप सबके पास बहुत ऐसे टूल्स हैं जो हमसे पिछली जनरेशन के पास नहीं थे। हम उनको यूज कैसे करते हैं? अपना स्क्रीन टाइम हम सब देखें, 2-3 घंटे तो हम लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे लंबे लंबे वॉइस नोट भेजने पे। पर हम उसको काम को कितना प्रोडक्टिवली यूज करें, ये जो हमारे पास चीजें हैं ये कैसे यूज करें, ये भी हमसे शायद एक अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है जो हमें अपने अंदर सोचने की जरूरत है कि व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। इसके अलावा यस, सॉरी, इतने ये है कि आई टेंड टू लूज द ट्रेन ऑफ थॉट्स। हम जेंडर पैरिटी की इंडेक्स की जो बात कर रहे थे, उसके साथ ही हम जेंडर प्रोपोर्शनेट सोशल मीडियम्स की बात भी करते हैं। वुमेन आर 19% लेस लाइकली टू हैव मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान। वुमेन ऑन द अदर हैंड ऑन सोशल मीडिया से के 16 to 58% ने किसी किस्म की हरासमेंट फेस की हुई है। और ये हरासमेंट ऐसी है जो काउंट फॉर करती है, बिकॉज जर्नली क्या होता है, हम सब ऐसे करते हैं। ये थोड़ा सा एक मसला है कि जब हमें कुछ मसला होता है ना, हम कहते हैं इसको बंद कर दो। तुम्हें थ्रेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया से, लोग तुम्हें गलत नंबर से कॉल करें, तो अपना नंबर चेंज कर लो। हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस की कमी की वजह से हम मैकेनिज्म्स पे नहीं जाते, हम इसके साथ शेम एसोसिएट कर देते हैं, जो भी देयर इज नो रीजन। आई कैन टॉक मोर अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी शेम एसोसिएटेड कि अगर मैं सड़क पे चलती हुई जा रही थी, मुझे किसी ने देखा है तो उसने तंग किया, उसने मुझे कुछ कहा है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसमें किसी लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर लड़कों का है जो वो ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है? और अगर मुझे किसी ने छेड़ा है और मैं इस पे आवाज उठाती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के लिए ये बात समझने के लिए जरूरी है कि ये इट्स हैज नथिंग टू डू विद मी। और ये सोसाइटल चेंज आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। हम बाय स्टैंडर्ड्स बनेंगे, हम ऐसा कोई वाक्य होगा, तो आपकी बहन के साथ ये वाक्य हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप कहेंगे घर पे, आप कहेंगी घर पे कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, लेट्स इन्वॉल्व द अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड इट इज ओके। ये बहुत सिस्टमैटिक आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी। ऐसे नहीं होगा आज आप कोई बात सुनेंगे, कल कुछ करेंगे, पहली दफा डांट ही पड़ेगी, पड़ती है डांट। पर देयर पीपल, आपको आपको पता है चाइल्ड साइकोलॉजी में भी ये बात होती है। छोटा सा बच्चे को पता है कि कौन सी बात किसको कहनी है और फिर वो मान जाएगा। बाहर वॉक पे लेके जाने का किसको कहना है, और मार्केट से कोई चीज लेके आनी है जंग, तो उसका किसको कहना है, और अभी मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा है, ये किसको बात कहनी है, खाना मैंने ये नहीं खाना है, किसको बात कहनी है और ज्यादा असर करेगी। तो ये सब हम सब में बिल्ट इन है। हम उसको ओवर टाइम किल कर लेते हैं या एक्सक्यूज बना लेते हैं अपनी चीजों को इम्प्रूव ना करने का। सो एज स्टार्टअप्स, think of things that are a problem in your society and come up with solutions। ये इतनी सी बात है, ये आपका स्टार्टअप आइडिया जनरेशन स्टार्ट करती है। आप देखें अपने आसपास कि क्या क्या हो रहा है और आपके पास उसका सलूशन क्या है, और वो आपका आइडिया है। ये आइडिया ऐसे ही है जैसे करीम ने देखा कि घर से लोगों का बाहर ट्रांसपोर्ट पे जाना मुश्किल है, उन्होंने कहा आपके घर पे आपको टैक्सी लेने आएगी। ये आइडिया है, इतना छाया है कि हम सब डिपेंडेंट हैं अब इस पे। सिमिलरली, अच्छा, उन्होंने कहा लड़कियों के लिए ट्रेवल करना मसला है क्योंकि वो फिर नंबर देना मसला है। उन्होंने कहा एनोनिमस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर के पास आपका नंबर नहीं जाएगा। और ये भी लेटर स्टेज पे आया। पहले उन्होंने बेसिक आइडिया फ्लोट किया कि अच्छा जी आपको घर से गाड़ी लेने आएगी, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आपका नंबर एनोनिमस रहेगा। ट्रैकिंग सर्विस, आपको लगता है आप सेफ नहीं हो उसके अंदर, आप अपना
लोकेशन किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, वो आपको ट्रैक कर सकता है। इस सब में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी थॉट लगी है उन लोगों की हु आर लुकिंग एट द सोसाइटी, हु आर लुकिंग एट व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, who are looking at different problems. I was reading Rashta's comment. किसी और को भी मेरी आवाज के साथ मसला आ रहा है? आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, इंटरनेट थोड़ा सा पाकिस्तान में शेकी रह रहा है आजकल, पर ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर सोच रहा होगा इस टाइम। एंड देन थोड़े से बाद कोई ऐसा टाइम आएगा जो अपनी कहानी में बताएगा कि मैंने उस टाइम पे ये चीज देखी और मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब हम मूविंग ऑन, टाइम भी हमारे पास कम है। आई रियली वांट टू सेव सम टाइम कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग जरूर पूछो। जब आप डिजिटल मीडिया पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं ना स्टार्टअप्स के लिए, बहुत सारी बच्चियों को ऐसे मसले भी आते हैं कि वो अपना नाम बताएंगी, किसी को फोन नंबर बताएंगी, रीच आउट करने की जगह बताएंगी, क्योंकि वो एक स्टार्टअप है, उन्होंने ये बताना है, और दे विल गेट इनटू ट्रबल ऑफ सम काइंड। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि अच्छा फिर वो कैसे बताएं, कोई एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स बना लें, कोई एडिड सिक्योरिटी मेजर्स ले लें, किसी से मिलने जाए तो किसी सेफ जगह पे जाएं जो कि पब्लिक प्लेस हो, रेड फ्लैग्स का थोड़ा सा ख्याल रखें। और ये बॉयज के साथ भी है, स्कैम हो रहा होता है। आपने देखा होगा अम्मी अबू के फोन पे मैसेज आ रहा होता है, फलाना नंबर पे मैसेज करें और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको 70,000 देने को तैयार है। 70,000 उन्हें तो दे नहीं रहे जिन्हें चाहिए, हमें दे देंगे वो। सो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कॉन्शियस रहें। कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसको देखें कि क्या ये जेन्युइन सोर्स से आई है, क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। हर चीज को शक की निगाह से नहीं देखें, पर अपने गट को ट्रस्ट जरूर करें। आपका गट आपको बताता है, पहली दफा हो सकता है फेल हो, पर अगर आप एक ही मिस्टेक बार बार करते जा रहे हैं तो देयर समथिंग टेक्निकली रॉन्ग विद योर गट एंड यू मे बी यू प्रॉब्ली टू डेस्परेट। कुछ लोग जो देख रहे होंगे आजकल ड्रामा, कभी मैं कभी, तो मैंने उसकी मीम से देखा है कि उसमें भी कोई उसके साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत डेस्परेट हुआ होता है प्रॉब्ली अपना आइडिया सर्कुलेट करने के लिए। सो हम जब डिजिटल स्पेसेस की सिक्योरिटी की बात करें, आप इंश्योर करें कि आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हो। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है तो खुदा रहा इसे चेंज कर लें। और सब प्लेटफॉर्म्स पे एक पासवर्ड नहीं रखें, कोई पासवर्ड डायरेक्टरी बना लें। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको सिक्योर करने में हेल्प करती हैं पासवर्ड, क्योंकि मुश्किल पासवर्ड रखो तो मसला ही होता है, दूसरे दिन भूल जाता है, फिर लॉग इन करना हो तो फिर आपको एक नए, आप एक मसले मसाइल मरहले में गए होते। इसके अलावा when you're sending and accepting links, make sure you know कि वो लिंक किस तरह का है, कहाँ से आ रहा है। कोई आपको anonymous लिंक भेजे, प्लीज डोंट क्लिक ऑन इट। मैंने भी अभी भेजा वैसे आप लोगों को एक, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको खोला है। इट वॉज नॉट faulty link, it was just to capture your name, your gender, your age, your institute and your area of work, ताकि थोड़ा सा मुझे एक आइडिया रहे कि मेरी किन रोबोट से बात हो रही है, क्योंकि किसी ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। ओके, सो इसके बाद स्टार्टअप्स के लिए आप ये भी कर सकते हो, आप पब्लिक और प्राइवेट प्रोफाइल्स में फर्क जान सकते हो, आप अपने पेज की प्रोफाइल्स बना सकते हो व्हाट्सएप पे। अच्छा, बाकी जनरली सिक्योरिटी फीचर्स लोगों को पता होते हैं कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप कमेंट्स ऑफ कर सकते हो, आप अपने आप को सेफ रख सकते हो इनोनिमस लोगों की इंटरेक्शन से। आप रैंडम रिक्वेस्ट को खुद भी प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत फिल्टर कर रहे होते हैं, पर आप रिपोर्ट कर सकते हो, लोकेशन शेयरिंग ऑफ कर सकते हो। पर ये सब हो जाए, फिर भी आपके साथ कुछ हो जाए, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि अच्छा रिपोर्ट कहाँ करना है, एफआईए का क्या मैकेनिज्म है, पीटीए क्या कहता है। आई नो ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, आई डोंट रियली वांट एनीवन टू गेट इनटू दैट, पर हमने ना उस फियर की वॉल को ब्रेक करना है इंफॉर्मेशन से। इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि अच्छा अगर ये बाउंड्री ब्रेक होती है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, बजाय कि वो
आप लगते हैं कि वो बाउंड्री ब्रेक ही नहीं हो रही, आप अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर रहे हैं, और फिर भी वो बाउंड्री ब्रेक हो जाए तो आपको समझ ही ना आए आपने क्या करना है। इसके लिए बहुत रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आई ऑलवेज से आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट माई टाइम, एंड दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपने किसी से कोई बात पूछनी है, आप पहले गूगल से पूछें, अगर आपको गूगल से जवाब नहीं मिलता, आप फिर उस बंदे से या उस खातून से पूछें। लोगों के टाइम की वैल्यू करें, अपनी भी, अपने टीम मेंबर्स की भी, अपने घर वालों की भी। मेडिकल उसके अलावा, क्योंकि अगर आप गूगल से पूछेंगे कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, तो आप यकीनन एक सर दर्द को एक ट्यूमर बना लेंगे। तो जो स्पेशलाइज लोग हैं उनको उनका काम करने थे, पर अदरवाइज आपको कोई सवाल है, कुछ बेसिक्स हैं, तो वो जर्नली आपको वहां से आइडिया मिल जाता है। ऐसे सेशंस में जरूर जो लोग अपना टाइम दे रहे हैं उनसे जरूर सवाल करें, उनसे इन टच रहें, फाइंड देम। जर्नली लोग कनेक्ट करना पसंद करते हैं, हैंड होल्डिंग भी पसंद करते हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक रिस्पेक्टेबल वे में उनसे अप्रोच करें। और दिस इज सो ट्रू फॉर स्टार्टअप्स। अगर वो एलिवेटर पिच की जो बात हो रही होती है वो यही है कि अगर आपको कोई एलिवेटर में मिलता है, आप एलिवेटर में जाते हैं और आप अगले स्टॉप पे आते हैं और आपके साथ बिल गेट्स एंटर कर जाता है एलिवेटर में, आपने उसके साथ उतने से टाइम में, कि उसने जो 13th फ्लोर तक जाना है और आपने 9th, इतनी सी बात करनी है कि आप उसके साथ क्लिक कर जाएं। जिस क्लिक करने के लिए आपने अपना आइडिया इतना थरली समझा, हजम किया और 50 दफा बोला हुआ है कि अगर आपने 3 सेंटेंसेस में अपना आइडिया बताना है या अपना स्टार्टअप एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन डू इट। क्योंकि अगर आप 30 सेकेंड्स में अपना आइडिया नहीं बता पा रहे, इसका मतलब है कि वो या तो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज है जो आप बना रहे हैं, या मे बी यू हैव नॉट इंडल्ज इनटू इट राइट लेफ्ट एंड सेंटर टू नो के अच्छा इसको करना कैसे। इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रिवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। अपनी प्रिवेसी का ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आप देखते हो व्हाट्सएप पे, और मैं जब आप देखते हो कहती हूँ तो इसका मतलब है जर्नल पब्लिक, आप देखती भी हैं और आप देखते भी हैं। पर जब आप प्रिवेसी होती है, जैसे व्हाट्सएप की प्रिवेसी सेटिंग्स है, आपका स्टेटस किसको नजर आए, आपका ऑनलाइन किसको नजर आए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर किसको डाले। और प्रोफाइल पिक्चर में आपको शायद ये भी पता होगा कि आप एक्सेप्ट के साथ कुछ लोगों से अपनी प्रोफाइल पिक्चर ब्लॉक भी कर सकते हो। फेसबुक का स्टेटस भी आप एक्सेप्ट डाल के कुछ लोगों से अपना ब्लॉक भी कर सकते हो, कि मेरे अब्बू को ना पता चले कि मेरा फोन चोरी हो गया, पर मेरा फोन चोरी हो गया तो आप सारे मुझे अपने नंबर दोबारा भेज दें, या थिंग्स ऑफ सॉर्ट। ये और ये सब लाइट नोट पे है, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव connection and the support system with your parents, with your siblings, with people you work with. बट ये सब प्रिवेसी के अंदर आ जाता है। अब सेफ्टी के अंदर क्या है, वही फोन है जो चोरी हो गया था पिछली एग्जाम्पल में, और उसको सेफ्टी के लिए आपने उसको किसी सेफ जगह पे रखा है, आपने कहीं अंदर रखा है, बैग के अंदर रखा है, हाथ में लेके नहीं फिर रहे। अगर आप वर्स्ट केसेस में किसी ऐसी मार्केट गए हो जहाँ पे फोन चोरी होता है, तो आप अक्सर लेके भी नहीं जाते। कराची के लोग इससे वुड एग्री के वहां पे ज़ैना मार्केट जाने के लिए एक डिफरेंस होता है आपके पास, क्योंकि यू डोंट वांट टू लूज दैट। तो ये सेफ्टी, सेफ्टी इस तरह की प्लेटफॉर्म्स पे भी है। प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी क्या है, कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लॉक की होती है, ये प्राइवेसी में नहीं की हुई, ये सेफ्टी में की हुई है, ताकि आपकी आपकी प्रोफाइल पिक्चर कॉपी ना हो सके। इसी तरह अब सिक्योरिटी में भी, या भी जो हमने बात की, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप में से कितने लोगों के पास है ऐसा कि आपको 2 साइमल्टेनियस डिवाइसेस से चेक इन करना पड़ता है तो फिर आपकी कोई भी प्रोफाइल खुलती है। ओके, क्या इसका जवाब हाँ है या ना, ये मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज मेक श्योर रीड अबाउट इट, इट्स नॉट टू हार्ड। आप अपने फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं, आप वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करें। उससे होगा ये, आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा। आप सब गालिबन 18 ईयर से बड़े हैं, आप सबके पास किसी किस्म का फोन है, आप वहां से वो सेटिंग्स ऐड इन करें ताकि आपका फोन, आपकी प्रोफाइल अगर किसी के एक्सेस में भी आ जाए, आपके पास एक पिन हो, आपके पास एक सेफ्टी कोड हो जिससे आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड दैट इज जस्ट अ बैरियर। ये ऐसे ही है जैसे सिक्योरिटी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स लोग रखते हैं।
या इंश्योरेंस लोग कराते हैं, उसमें ये नहीं है कि आपकी कभी ब्रीच होगी नहीं, आपके घर में कभी चोरी हो नहीं सकती, पर इट्स जस्ट अ बैरियर। अगर एक चोर ने 2 गाड़ियां चोरी करनी है, एक के ऊपर ट्रैकर लगा हुआ सामने दिख रहा है और एक के ऊपर नहीं दिख रहा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस चोर के उसी को अटैक करने की जिसके ऊपर ट्रैकर नहीं दिख रहा। टेम्पर्ड ग्लास है एंड थिंग्स, सो एंड सो फोर्थ। सो इस तरह की चीजें, ये सेम चीजें ट्रांसलेट हो रही हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में। वहां पे कुछ इनका वो फर्क है, पर इनको आप देखिए, इनको जो चीज सोचते हैं उसको उस लेंस से भी सोचिए। सेफ्टी बाय डिजाइन अब एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल डिबेट है कि लोगों से वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी और सिक्योरिटी के बारे में तो आपने बहुत काम किया अपने सोशल मीडिया पे या अपने डिजिटल मीडिया पे, आप सेफ्टी बाय डिजाइन के ऊपर भी काम करें कि बाय डिजाइन हो कि ये चीजें आपकी सेफ रहेंगी, आपका डेटा लीक नहीं होगा। स्टार्टअप्स के लिए भी ये होता है, आप में से कुछ लोग अगर स्टार्टअप्स में बिजनेस करते हैं, मे बी कोई कैंडल बनाता है, कोई कपड़े इधर से उधर सप्लाई करता है, कपड़े बनवाता है, कुछ और काम है, आप लोग वो जो डेटा आपके पास आता है कि मैंने आपको ऑर्डर प्लेस किया, मैंने आपको अपना नंबर दिया, मैंने आपको अपना एड्रेस दिया, आप उसको कहाँ स्टोर करते हैं? आप उसको किसी एक्सेल फाइल में डालते हैं, बस यू लूज इट वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। आप अपनी प्रमोशंस अपने वन ऑफ कस्टमर्स को भेज सकते हैं, आप फीडबैक के लिए उसको यूज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आपको कैसा लगा, कोई आपका कस्टमर कंप्लेन करता है, आप उसको देख सकते हैं सर चीज क्या मंगाई थी। एट द सेम टाइम आपके लिए वो डेटा, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर आपको अपना डेटा दिया, मैंने आपको घर का एड्रेस बताया, फोन नंबर बताया, अपना नाम बताया, तो आप मेरे डेटा को रख कहाँ रहे हैं? आप उसकी एक प्रिंट आउट करके प्रिंटिंग मशीन पे छोड़ जाते हैं और कोई XYZ मेरा डेटा उठा के वहां से मुझे फोन करता है, जो आप सबको आते होंगे इस किस्म के फोन। आपने कभी KFC पे अपना नंबर दिया था, कभी आपने निशाल लिलन पे अपना नंबर दिया था, और आपको एक दिन रैंडम नंबर से फोन आ रहा है, जी वो हमने कुछ बनाते हैं आप ले लें। बंदा पूछता है आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? भाई मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं लिया। एंड दैट इज बिकॉज कुछ डेटा ब्रीच हुई है, किसी स्टार्टअप के एंड पे हुई है, किसी बिजनेस के एंड पे हुई है, जिसको मैंने ये एक्सेस नहीं दी थी, पर उसने, आपने क्योंकि डेटा की कोई सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की हुई थी, तो मेरा डेटा उसके पास चला गया। इसी तरह अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, और ये मेरी लास्ट सेंटेंसेस होंगे, TFGBV के बारे में, जो रुश्ता ने शुरू में कहा था। ये क्या होता है? ये होता है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये कैसे होता है? जो कुछ अभी हमने बताया ना, हरासमेंट हो रही है रोड पे, वो समझे हम ऑनलाइन स्पेस में आ गए। जब ऑनलाइन स्पेस में आ गया तो वो बहुत एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई किस तरह हुआ कि पहले मैंने किसी को अगर कुछ कहना था, मुझे उसके घर जाना पड़ता था, उसकी मुलाकात करनी पड़ती थी, वर्स्ट के सिनेरियो फोन नंबर आ जाता था। अब इससे बात आगे चली गई है, अब आप सोशल मीडिया पे किसी को ढूंढते हैं, आप उसको जो मर्जी कहते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, एंड देयर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। सो ये हेरासमेंट जो हमें लगता है, फिर उसका हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं तुम अपना अकाउंट बंद कर दो, इट इज लॉफुली रॉन्ग, ये पनिशेबल ऑफेंस है। और ये समझाना किसी को कि आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस या टीवी एंकर या इस मोस्ट केसेस में पॉलिटिकल सिनेरियोज में आप किसी के ऊपर जाके नीचे गालियां नहीं लिख के आ सकते। आप ये कमेंट करेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये गलत बात है। और ये भी टारगेट इसका, क्योंकि खवातीन ज्यादा होती हैं जनरली, और खवातीन की रिप्रिकॉशंस भी ज्यादा है। हम सबको मालूम है ऐसे केसेस का पाकिस्तान में जो हुए, जिसपे इट लेड टू पीपल बीइंग किल्ड एंड किलिंग। इट आल्सो लेड टू गर्ल्स लूजिंग अपॉर्चुनिटीज। किसी को कोई रैंडम नंबर से कॉल्स आ रही है तो उसके बुकेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ने और लेने जाऊंगा साथ, और अब तुम फोन नहीं अपने पास रखो कि तुमने कुछ किया होगा। सो वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट। और इस सब के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं या इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी तरह, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। हमारा प्रोजेक्ट है शी लीड्स के नाम से, जो हम 3 कंट्रीज के साथ करें, और उसमें हम इस चीज को टारगेट करें कि ऑनलाइन स्पेस में जो लोग डिस्प्रोपोर्शनली टारगेट होते हैं वो क्या कर सकते हैं। और इसमें जाहिर है अगर आप स्टार्टअप्स बनाएंगे तो आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज जब आपकी रीच ज्यादा है आपके ऊपर थ्रेट भी ज्यादा है। सो ये मेरी कुछ टूटी फूटी थॉट्स थी अराउंड दिस होल थिंग।
if you have any questions, I will be here till 12:10 because अभी 11:56 हुए हैं. I don't want कि अगर किसी का क्वेश्चन सिर्फ इसी में सो जाए कि सेशन का टाइम खत्म हो. So please let me know. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your remarkable insights. Okay, and it was, ma'am, a really interesting session. Ma'am, my question is regarding the stability of startups. Like as you have the experience of that, so generally, kitna time लगता है? Like how many years? Of course, like it depends, upon the many other factors. But फिर भी एक estimation कि generally हम कितने time में एक startup को जब वो stabilize कर सकते हैं, उससे proper earning start कर सकते हैं. रुशिदा, ये बहुत I'd say एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कंपैरेटिव है. अब फेसबुक ने कब अर्निंग स्टार्ट की, ये बहुत डिफरेंट है उससे कि एक कपड़ों का बिजनेस कब अर्निंग स्टार्ट करता है. सो पर आप जनरली स्टार्टअप की दुनिया में होता है कि 3 से 6 मंथ्स का तो आप अपना बर्न आउट टाइम रखते हैं. आप काम कर रहे हैं उसमें, आप देख रहे हैं, एंड देन यू गेट द आइडिया एंड गेट द सेंस ऑफ इट कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा. पर ये नहीं हो सकता कि आप 2 महीने का भी आपके पास एडवांस ना हो और आपके यहाँ स्टार्टअप चलाने लगे, तो इट डजंट जर्नली वर्क. आप उसको तहम्मुल से थिंक थ्रू इट. उस टाइम में ज्यादा टाइम ले लें बेशक कि आपने जब लॉन्च करना है उससे पहले. और एक और बात इसमें ये कहूंगी मैं कि जनरली हमारे जो बिजनेस आइडियाज होते हैं ना, हम अपने अच्छा पर इसमें भी ये है कि आप देखिए अपने जो आपके दोस्त हैं ना, जो आप उनके साथ बैठते हैं या बैठती हैं, आप कपड़ों की बात करें ना, आप घंटों करते रहेंगे. पर जैसे ही आप कहना अच्छा यार लेट्स मोनेटाइज समथिंग, वो कहेंगे इसका तो दिमाग खराब है. मतलब यू आर नॉट टेकन सीरियसली बिकॉज लोगों को लगता है कि नहीं, फ्रेंड्स आर जस्ट टू चिल, टू हैंग आउट. और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, एक तो हम गलत सर्कल में होते हैं और दूसरी हम ये कर रहे होते हैं कि हम उन्हीं फ्रेंड्स को अपने स्टार्टअप्स में साथ ले लेते हैं. सो जब आपने स्टार्टअप बनाना है, आपने लोगों को उनकी कॉम्पिटेंस के बेस पे अपने साथ रखना है. इसलिए नहीं रखना कि वो आपका दोस्त है, आपकी अम्मी है, आपके अबू हैं, क्योंकि इवेंचुअली यू विल नीड पीपल जो आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे. आप वन मैन या वन पर्सन शो नहीं होंगे, क्योंकि वो आप कितने अरसे तक कर सकें. इवेंचुअली you will have other responsibilities to take care of और आप उतना टाइम नहीं दे सकेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीजें सब फैक्टर इन करें और फिर अपने प्रोजेक्ट को, अपने स्टार्टअप को टाइम दें. वो और ये टाइम ऐसे नहीं है कि दिन रात सुबह शाम, आप 2 घंटे दिन के दें पर आप डू दैट जस्टिस. हो सकता है 2 घंटे दिन में, वही जैसे पहले बात हुई, आप क्योंकि 2 घंटे दे रहे हैं और दूसरा 4 घंटे दे रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि अभी वो आपसे बहुत आगे. पर आप हर दिन 2 घंटे दे रहे हैं और वो हफ्ते में इवेंचुअली उसकी पैशन जब डाई डाउन करती है और उसमें आपको डिसिप्लिन नहीं किया हुआ और वो 4 से फिर 3 पे और फिर उसके बाद 1 पे और फिर 0 पे आ जाता है. पर आपने क्योंकि 2 घंटे देने हैं हर दिन, तो आपने वो होमवर्क कर रहे हैं, मुसलसल आप बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे से आगे रिसर्च में जा रहे हैं. सो ये चीजें सब आपने देखनी होती हैं. टाइम कोई खास हो नहीं सकता अंटिल यू हैव द बिजनेस आइडिया. और उसमें भी आप अपने लिए खुद ही टाइमलाइन तय करते हैं ना कि 3 मंथ्स में आई सी माई सेल्फ डूइंग दिस, 4 मंथ्स में आई डू दैट, उसके 6 मंथ में पिच करूंगी इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स पे मैं देखूंगी. पर अगर इन्वेस्टर नहीं भी पिच करता, क्योंकि आपने आपने खुद ऐसी एग्जाम्पल्स सुनी हैं, जानी है, जहाँ पे याहू को जब फेसबुक ने अप्रोच किया, या प्रॉब्ली आई एम मिक्सिंग द नेम, जाइंट्स, उन्होंने कहा नहीं हमें तुम्हारा आइडिया नहीं चाहिए. तो एज एन इन्वेस्टर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. पर बाद में दे हैड टू कम बैक, पे अ हायर प्राइस एंड स्टिल कॉन्टैक्ट दो सेम पीपल. और इन अदर सर्कमस्टेंसेस वो उन्होंने अपनी सर्विसेज में वो फीचर्स भी डाल दिए बिकॉज उनको लगा अब तो मार्केट ही इसकी है. और ये स्नैपचैट की फीचर्स जैसे इंस्टाग्राम पे आए हैं स्टोरीज के फॉर्मेट में, हम सब ने देखा है. व्हाट्सएप को जैसे मेटा ने बाय किए, हम सब ने देखा है, क्योंकि वॉइस नोट्स के बगैर या इतनी इंस्टेंट कम्युनिकेशन के बगैर जिंदगी चल नहीं रही थी. सो
अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार रखें कि हो सकता है आपको इन्वेस्टर ना मिले, वाकई आपका आइडिया इतना जेन्युइन हो, कीप वर्किंग ऑन इट। और हो सकता है आपको इन्वेस्टर मिले, पर वो आपसे फिर इक्विटी का शेयर इतना ले लेंगे आप वो देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। सो इट्स अ वेरी आइड से डेलिकेट बैलेंस जो आपने अपने लिए रखना है, और ये हर पर्सन की स्टोरी में डिफरेंट होगा। ये मेरे कहने से नहीं आ सकता, आपके कहने से नहीं आ सकता। ये जिस पर्सन की जो स्टोरी है, जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसका विजन है ऑफ डूइंग थिंग्स, वो उस पर डिटरमाइन करेगा। सो वी कैन टॉक अबाउट one startup individually, but this would be my overall response. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you for your time. I really hope and wish you all the best. मेरा नाम वर्दा इफ्तिखार है। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, and if there's some way I can be of help, please let me know. Thank you so much. Have a good day.